Hello children, welcome to 7th day. Today is the 7th day of spoken English online classes and we are taking up the topic homophones, right? Homophones. So children, homophones are those words which sound same, which have same pronunciation. They are spoken in the same way but they have different meaning. जो बोलते हैं हम एक जैसा सुनाई देते हैं पर उसका मतलब अलग होता है, राइट? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया आई. अब आई क्या है? प्रोनाउन है. लाइक आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई हैव अ पेन. सो ये जो आई है, सिंगल आई, कैपिटल आई, दिस इज अ प्रोनाउन. एंड द सेकेंड वर्ड, दिस इज ऑल्सो स्पोकन एज आई. अब ई वाई ई को भी हम आई कहेंगे, है ना? पर ये क्या है? आई बॉडी पार्ट, आंख. माई आई हर्ट्स, आई सी विद माई आईज, लाइक दिस. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो ये आई और आई, दीज टू आर होमोफोन्स बिकॉज इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन, वी प्रोनाउंस देम इन द सेम वे बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट. सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अप इज बेयर. सो बेयर क्या है? एग्जाम्पल, इट इज एन एनिमल. भालू जिसे कहते हैं ना, हमने जू में देखा है. सो आई सॉ अ बेयर इन द जू. आई सॉ अ बेयर, ये बेयर जो है वो एनिमल है. अनदर वर्ड इज बेयर, BARE, बेयर. इसका मतलब है विदाउट एनीथिंग ऑन, दैट इज नेकेड, बिना कुछ पहने हुए, या जैसे नंगे पैर कह देते हैं वैसे. दैट बेयर, BARE, जब कुछ कवर ना हो ऊपर, दैट इज बेयर. शी लाइक्स टू वॉक अराउंड इन बेयर फीट. उसको नंगे पैर घूमना अच्छा लगता है. जैसे हम ग्रास के ऊपर भी नंगे पैर घूमते हैं. वी लाइक टू वॉक ऑन ग्रास in bare feet, isn't it? So these two words, they are pronounced in the same way but their meaning is different, like bear and bear. Third word is pain, PANE, and another word is PAIN, pain. Both are spoken pain but both have different meaning. Like first pain is glass sheet, a pane of glass got broken, और विंडो पेन गॉट ब्रोकन. खिड़की के शीशे को हम कहते हैं पेन, PANE. इट्स अ ग्लास शीट. अब सेकेंड पेन जो है, दैट इज पेन इन योर नेक और पेन इन योर फुट. दर्द जिसे कहते हैं, इसका मतलब है एक. एक, आई हैव अ पेन इन माई फुट, आई हैव स्टमक एक, आई हैव पेन इन माई हेड, आई हैव अ हेडेक. Right children? Pain and pain. Fourth word is way, WAY, way. It can be a path. एक रास्ता हो सकता है ना, वे, तरीका भी होता है. But here we are taking it as a road, path. Come this way, इस रास्ते पे आ जाओ. Another word which are same pronunciation but its spelling is different and its meaning is also different. It's weigh, WEIGH. Weigh is to measure something. Weigh is to measure something. The baby weighs 7 pounds at birth. जन्म के समय बेबी का वेट पाउंड्स में हम गिनते हैं, 7 pounds, right? Then we have an example, some. SOME, some means few, कुछ. I took some coins. नेक्स्ट सम इज SUM. सम इज जब हम दो चीज को ऐड करते हैं. द सम ऑफ 2 + 2 is 4, राइट? सी एंड सी, वन इज SEAC, दैट इज ओशन, समुद्र, एंड वन SEEC, when you see something with your eyes, देखना. So first one is fish live in the sea. So I have made this sentences also ताकि आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए. सेकेंड C, SEEC is to use eyes, to see with our eyes, right? We see with our eyes. Buy and buy. And another homophone is BYE also here. There could be many also, right? And children, homophones में ऐसा होता है कि मीनिंग
अलग होती है तो वर्ड्स कई बार सेम भी होते हैं, ठीक है। जैसे रोज एंड रोज, ROSE रोज, ROSE रोज, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर इनके मतलब अलग हो जाएंगे। एक रोज फ्लावर हो गया, फ्लावर ऑफ रोज, और एक रोज हो गया पास्ट टेंस ऑफ राइस, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग अप सेवंथ पेयर ऑफ वर्ड. Seventh pair of word is BUY buy and BY buy. First is to purchase something, ठीक है ना, buy, to give, to take, giving money, purchase. I'll buy a dress. I'll means I will. I'll buy a dress. Then next by BY buy any side. Sit by me, मेरे साथ बैठ जाओ. Sit by me, मेरे साथ बैठ जाओ. Then we'll take up two words, a pair of words, blue, blue. BLUE is the color. The spelling of color is, children, COLOUR actually. Okay, this is American, COLOUR. It's all right. Oh, British or American, it's all right. My favorite color is blue. And another word is BLEW, past tense of blow. Blow होता है फूकना या बजाना या हवा, to give out, you know, this air from your mouth. That is blow. The sports teacher blew his whistle. Sports teacher ने अपनी whistle बजाई. Past tense of blow. Flower and flower. This first flower is part of a plant. I love flowers, like flowers of rose, jasmine, lotus. These all are flowers. And then we have flour. That is powdered grain. Flour is made of wheat. Okay, when we make powder of grains, जैसे आटा हो गया, FLOUR. Then we have one more word, floor, FLOOR, floor. That is जमीन जिसे कहते हैं, the ground, floor. Floor of the room, ground of the room. Right, children? 10th is dye, DYE dye, DIE dye. First one is color. I dyed my hair red. किसी ने अपने बाल डाई किए रेड कलर के, तो डाई करना होता है कलरिंग करना. एंड DIE डाई, दैट इज डिमाइज, मर जाना, ठीक है. देयर डॉग डाइड सडनली, देयर डॉग डाइड सडनली, तो ये डाई है मर जाना, नॉट अलाइव. एंड फर्स्ट डाई DYE इज टू डाई, टू कलर. देन वी हैव सन एंड सन, SON, सन मीन्स मेल चाइल्ड, बेटा. डॉटर एंड सन, वो वाला है सन बेटा. एंड SUN इज द सन विच इज पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो SUN सन का है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. SON मेल चाइल्ड, दैट इज आई लव माई सन. राइट. द नेक्स्ट वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड इज हेयर, 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 हेयर. So first word is hear, that is listen. Can you hear me? Can you listen to me? I'm glad to hear that. मैं बहुत खुश हुई सुनकर. I'm very happy. Glad मतलब happy. I'm very glad to hear that. ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई. Here, HERE, to be present at a place, होना. I am here to help you. मैं यहाँ तुम्हें मदद करने के लिए ही हूँ. I am here to help you. Next words are mail and mail. MAIL, mail, you know beta letters. So he sent me an email. और ये MALE, mail क्या है? Gender, male female वाला. Okay, gender, MALE, gender. Dog is male of which? She dog को क्या कहते हैं? Which. और he which को क्या कहेंगे? Dog. Right, children? Then the next pair is allowed, allowed. First allowed is permission, किसी से आज्ञा लेना, permission. And next allowed, चीख करके जोर से, allowed, that is loudly. First allowed का देखो sentence, the parent allowed their children, okay, the parent allowed their child to go on a picnic. यानी पेरेंट ने अलाउ कर दिया चाइल्ड को पिकनिक जाने के लिए. अलाउड मीन्स गेव परमिशन, आज्ञा दे दी. अलाउड, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अलाउड
who was going away. उसका दोस्त दूर जा रहा था तो उसने बहुत जोर से उसको पुकारा. He called his friend aloud who was going away. Then the next pair of word is alter, altar, alter, alter. ठीक है. First alter is change. ये मुझे ड्रेस ऑल्टर करके दे दो. इसमें ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा. आई गेट माई ड्रेस ऑल्टर. मैंने अपनी ड्रेस को छोटा बड़ा कुछ करवाया है, चेंज करवाया है. एंड नेक्स्ट ऑल्टर इज रेज्ड प्लेटफॉर्म इन टेम्पल्स. जब ये स्पेशली बेटा क्रिश्चियंस या टेम्पल्स में कई बार होता है, चर्च में सॉरी एंड टेम्पल्स में एक शेल्फ टाइप सा होता है, प्लेटफॉर्म टाइप सा होता है रेज्ड. उस पर क्या है, बलि दी जाती है या कुछ भी रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है, कुछ भी सैक्रिफाइस करा जाता है. सो फर्स्ट का सेंटेंस है आई गेट माई ड्रेस ऑल्टर. नेक्स्ट है ऑल्टर का द प्रीस्ट स्टूड. यू नहीं होगा. द प्रीस्ट स्टूड एट द ऑल्टर टू पे सैक्रिफाइस टू गॉड. जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, वो अल्टर के ऊपर के पास खड़ा हो गया एट द ऑल्टर, सैक्रिफाइस देने के लिए गॉड को कुछ बलि चढ़ाने के लिए, गॉड के लिए. देन वी हैव आर्क. ARC, आर्क. फर्स्ट आर्क इज पार्ट ऑफ अ सर्कल. ठीक है. द आर्क इज लाइक अ स्मॉल कर्व. एंड नेक्स्ट आर्क ARK. It was a big boat made by an imaginary character, Noah. बहुत पहले जब तूफान आता है तो नूह नाम का कैरेक्टर बेटा क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस के उसमें स्टोरी है बाइबल में, आई थिंक कि आई डोंट नो मच, सॉरी. तो नूह जो था ही बिल्ट एन आर्क टू सेव हिज फैमिली. तो उस तूफान में उसने एक बहुत बड़ी शिप बनाई थी टू सेव हिज फैमिली. नूह बिल्ट एन आर्क टू सेव हिज फैमिली. उसने बहुत बड़ी एक बोट बनाई. सो अब आप और इस तरह के वर्ड्स लेंगे जो सेम प्रोनाउंस होते हैं, विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट. तो आप कम से कम 5 वर्ड्स ऐसे ढूंढिए. दैट इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, एंड यू राइट देम. Try to find out their meaning and then use them in your own sentences. आप अपने सेंटेंसेस में यूज करिए ताकि उनका मीनिंग भी क्लियर हो. राइट माय चिल्ड्रन, हमने आज होमोफोन्स किए जो एक जैसे सुनने में लगते हैं पर उनका मतलब अलग होता है. कई बार उनकी स्पेलिंग्स अलग होती है, स्पेलिंग अलग नहीं भी हो तो भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था रोज का. ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज फॉर टुडे एंड यू प्रैक्टिस ऑल योर प्रीवियस लेसन्स ऑल्सो. So this was for today, homophones. Thank you. Work hard, stay home, stay very happy. Bye bye. God bless.